हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हमारे बीच हैं प्रिया थोरिया, हु आर currently pursuing एमटेक फ्रॉम आईआईटी केजीपी इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। इनसे हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। बीइंग ए मैथमेटिक्स एमएससी स्टूडेंट, हाउ शी डिसाइडेड टू join this course and about campus facilities, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कोर्सेज, एमटेक करिकुलम, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल प्रिया एंड थैंक फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। Thank you so much, sir, for having me here on this platform. And it's my pleasure to be part of this talk. Thank you so much. ओके प्रिया, coming to the main questions, tell about your educational background little. Sir, I did my graduation from one of the private university in Surat, and then I pursued my MSc in mathematics from NIT Jamshedpur. And in 2024, I got a good rank in GATE mathematics, and then I started to pursue MTech in computer science and data processing at IIT Kharagpur. So currently, I am in second year at IIT KGP. Okay, so what was your rank in GATE 2024? It was 220. 220 220. in mathematics. Subject was mathematics, right? Yeah, subject गेट was इन मैथमेटिक्स, mathematics. ओके 220, वेरी नाइस। सो Hmm. एमएससी मैथमेटिक्स के बाद, गेट क्वालिफाई करने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं कि हायर स्टडी में जाते हैं, पीएचडी या फिर टीचिंग में जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक। हाउ यू डिसाइडेड एंड क्यों डिसाइड किया? कुछ मेन वजह, लाइक प्लेसमेंट होगा या इंटरेस्ट था, पहले से सोचा हुआ था, कोडिंग में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है? सो कैन यू टेल अबाउट दिस? हाँ, कोडिंग में इंटरेस्ट था ग्रेजुएशन टाइम से ही। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आई कैन स्विच माय स्ट्रीम, लाइक कि आई कैन गो टू दिस फील्ड। तो टर्निंग पॉइंट वाज एनआईटी जमशेदपुर, when through one of the professor I came to know that one can pursue MTech. And after MSc, one can pursue MTech. So I researched that which colleges provide MTech courses to the MSc students. So I came to know that IIT Madras, IIT Kharagpur, IIT Guwahati, IIT Palakkad, IIT Patna, all these institutes offer courses to MSc mathematics students. And then my interest was to do MTech because I researched the current courses like AI, ML, machine learning. So all these courses are nothing but the combination of mathematics concepts and some computer science fundamentals. So I decided to implement my mathematics knowledge to this field, and then it was like, yeah, I have to do MTech. So from there, ओके। I started preparing math for GATE mathematics. Okay, nice. So, being a mathematics as a student, it is helpful to doing this courses like एमटेक का कुछ करिकुलम है ना, कुछ कोर्सेज हैं स्टार्टिंग में। आपका कोर्स वर्क, एक वर्क शायद आप कंटिन्यू कर रहे हो या कंप्लीट हो चुका होगा, आई थिंक। सो कोर्सेज जो टॉपिक्स हैं उसमें हेल्प होता है या कुछ चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि हमने बीटेक नहीं किया है, कोडिंग रिलेटेड काम नहीं किया, हमें एमएससी मैथमेटिक्स किया, तो कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? और करिकुलम में आप क्या क्या पढ़ते हो? एडवांटेजेस है कि जैसे इन फर्स्ट सेमेस्टर आई हैड ड्राफ्ट थ्योरी सब्जेक्ट। तो ड्राफ्ट थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हाँ, मतलब मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। बट बाकी सर, देयर इज ए हेक्टिक हम्म। challenges also, like कि as we are not from BTech background, तो starting में I also faced a lot of problems in understanding coding. It was like it's, we had a data structures and algorithm in first semester itself, and object oriented programming, that is also हम्म। CS oriented subject. हम्म। So in first semester itself we had a CS oriented subjects, and IIT खड़गपुर में ऐसा ही है कि लाइक कि यू रेयरली सी द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मतलब बहुत कम मिलेगा मैथ्स की सब्जेक्ट, बस एक ग्राफ थ्योरी था, बाकी सारे सीएस के सब्जेक्ट्स थे। तो इट वाज रियली चैलेंजिंग, बट इट वाज लाइक कि करना है, कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस थोड़ा मतलब थोड़ी हार्डवर्क की एंड ठीक है, मतलब अभी तो यूज टू हो गए मतलब यहाँ के एनवायरमेंट से। एंड इन सेकंड सेमेस्टर वी हैड लाइक कि artificial intelligence course, machine learning,
And again, we had advanced data structures and algorithm, which we used to do in C++. And so also we had operating system codes, which is also like a CS oriented subject. So कंप्यूटर नेटवर्क भी है, सारे के सारे CS फंडामेंटल के सब्जेक्ट्स हैं, बट कोर्स बहुत अच्छा है. एंड इफ मतलब अगर कोई एमएससी मैथ्स, इनफैक्ट नॉट ओनली एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स का भी कोई स्टूडेंट है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल. इन इन माय क्लास देयर आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फिजिक्स, ओके। एंड दे आर लाइक कि मतलब बहुत बेनिफिशियल है. तो इम्प्लीमेंटेड टाइप का टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं उसको यूज करने को दिख रहा है, सो करने में शायद मजा है, लाइक एंड हाउ हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन राइट नाउ, लाइक एक साल तो हो गए हैं, लाइक तो अभी तक ठीक है, स्मूथ होने लगा है चीजें, एग्जाम एग्जाम सब क्लियर हो रहा है? यस सर, अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स तो अभी फिनिश हुए थे मेरे 10 दिन हम्म। पहले, हम्म। बिफोर 10 days. एंड आफ्टर दैट वी आर लाइक कि प्रिपेयरिंग फॉर सम लाइक कि एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम. दैट्स व्हाई मतलब वी डिडंट गो टू होम आल्सो, एंड लाइक कि वी हाउ टू डू सम प्रोजेक्ट एंड द प्रोफेसर. सो ऑल these You things are are going doing on. that. Yes. So okay, now you are thinking for internship like something or project. So for that, what criteria anyone should fulfill, and what requirement for this? इंटर्नशिप का थोड़ा ये है कि मतलब फॉर एमटेक इंटर्नशिप सिनेरियो इज नॉट दैट मच गुड, इज Mm-hmm. मतलब कंपेयरिंग टू बीटेक. फॉर Mm-hmm. बट प्लेसमेंट्स आर रियली मतलब प्लेसमेंट्स आर रियली गुड. लाइक अप टू दिसंबर मतलब स्टूडेंट्स मतलब उतना प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को कि प्लेसमेंट्स अच्छी है. इन इन माय सीनियर बैच आल्सो, लाइक कि इंटर्नशिप को तो बस 3 लोगों की लगी थी, बट अगर मैं बात करूँ कि प्लेसमेंट्स की, तो इट्स 99%, बस 2 बच्चे रहे हैं. तो Mm-hmm. प्लेसमेंट सिनेरियो इन CSDP कोर्स इज वेरी वेरी गुड. But internship is not that much good. Okay. So actually, so we are looking at under a professor की project कर ले. So that Mm-hmm. is what we are going to do. Mm-hmm. So this is Okay. truth. So Hmm. do you have any data? How was the package of your seniors? Package कितना गया था? कुछ average or something? Yeah, yeah. Obviously, we have, and our seniors were very helpful in these contents. मतलब we, मतलब they used to tell everything. So highest package was in Misho, and it was 35 LPA. 35 LPA. And the Mm-hmm. student was of MSc Mathematics student. And you now you can imagine कि MSc Maths करने के बाद शायद उसे 35 LPA मिलते हैं. But 2 साल यहाँ किया MTech, Mm-hmm. and he got 35 LPA. And Mm-hmm. median is like is 17 LPA. 16, 17 LPA. And Mm-hmm. 4 to 5 people were about 22 LPA also. 22, Mm-hmm. Mm-hmm. 23. And lowest salary was offered was 10 LPA. It Okay. was the Mhm. data. So, And we had 28 seniors, तो उसमें से 26 seniors की प्लेसमेंट हो गई, 2 were remaining. ओके, सो सो प्लेसमेंट अगर सोच रहे हो कोई भी थर्ड सेमेस्टर से अपना ट्राई करना स्टार्ट करना है, तो प्लेसमेंट के लिए किन किन चीज़ों पे आप लोग प्रिपेयर करते हो, या किन किन चीज़ों का आप प्रिपरेशन कर रहे हो? आपको भी प्लेसमेंट पे जाना होगा, राइट? सो या फिर अभी क्या हम्म. चल रहा है, अभी लाइक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए टॉपिक पे रिसर्च करना है, उस पर काम कर रहे हो, या ऑल थिंग्स एक साथ उसको देख रहे प्रोजेक्ट तो मतलब करना ही है, लाइक कि देर आर 2 domains हो? for the people, like one can go in software developer role and one can go in data scientist or machine learning engineer. In our seniors batch, there were people who went to software developer role also. So for software developer, one how to prepare for advanced data structures and algorithm, लाइक कि पूरा डीएसए एडवांस लेवल का होना चाहिए. कोडिंग शुड बी वेरी अप टू हाई लेवल, एंड C++ में प्रेफर करते हैं उसमें. एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड इज सिस्टम डिजाइन, वन शुड प्रिपेयर. एंड and DBMS also, DBMS, database management system. And for the data scientist role, one should prepare
one should prepare what artificial intelligence and machine learning courses, and that should be in Python. कंपनीज हम्म पाइथन में प्रेफर करती है डाटा साइंटिस्ट रोल के लिए। एंड डीबीएमएस तो दोनों में ही कॉमन है, नो डाउट। हम्म एंड उप्स भी मतलब दोनों में ही होना चाहिए, दोनों रोल्स के लिए उप्स आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So these are the subjects one should prepare for placements and projects। तो मतलब कोई भी रोल के लिए जाओ, one should have better project because इंटरव्यू में मतलब दे आर लाइक कि मतलब पूछते हैं कि व्हाट यू डिड इन दिस प्रोजेक्ट। एंड दे मतलब आवर सीनियर्स यूज्ड टू टेल कि आधा घंटा दे जस्ट आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट तो दोनों प्रोफाइल के लिए हम्म नेसेसरी है ही है। हम्म एंड या एट लास्ट कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर। हम्म मतलब there are some students in our senior batch who had a 9 plus CGPA, but due to lack of communication, they just ended up in 12 LPA also. So this is one of the most essential criteria, communication skills. So these are the enough। ओके। अगर कोई एमएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहा है, एमटेक करने जा रहा है, तो जैसे ये सब सॉफ्ट स्किल है ना, हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, हम्म। इसके अलावा किन चीज़ों का पहले से प्रिपेयर करके आए जिससे कि वो यहाँ पे हेल्पफुल हो? कुछ कोर्सेज, कुछ टॉपिक्स पहले से अच्छे से सीख के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कौन कौन पॉइंट पे ध्यान दे सकता है वो? मतलब ये है कि मतलब गेट होने के बाद भी 2-3 महीने की छुट्टियां तो रहती हैं, मतलब लाइक की वैकेशन टाइप गैप हम्म रहता है। तो उस गैप में वन कैन हैव रिसर्च की उसे हम्म मतलब कौन से प्रोफाइल में जाना है, इंडिविजुअल को कौन से प्रोफाइल में जाना है, ये तो है ही। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो एज यू सेड वो तो डेवलप करना ही करना है। तो मेनली मतलब थोड़ा बेसिक करके आ सकता है, मतलब इंडिविजुअल लाइक कि C++ का बेसिक, पाइथन का बेसिक। तो थोड़ा यहाँ पे आके क्योंकि मतलब बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोफेसर्स भागते हैं ना, दैट यू ओके। कांट कोप अप विद दिस स्पीड। तो इफ यू प्रिपेयर C++ और पाइथन बेसिक, देन यू कैन हैव लिटिल बिट एज। सो ओके दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके। सो अब अगर हम बात करें कि लाइक अब कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी, आपने तो AI ML कर लिया, बहुत सारे एडवांस कोर्सेज भी कर रहे हो, सो इधर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में कुछ प्रोजेक्ट के अलावा कोर्सेज दूसरे डिपार्टमेंट में जाके ऐसे कुछ कोर्सेज इंटरेस्टेड होते हो, या वो कौन सा कोर्स है जिसमें इंटरेस्टेड हो? हाँ मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में कोर्स कर सकते हैं, बट द गुड थिंग इज दैट IIT खड़गपुर का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इतना अच्छा है ना कि अदर डिपार्टमेंट स्टूडेंट ध्यान यूज नहीं टू कम इन अवर डिपार्टमेंट। ओके। So we don't need to go in other department। Uh, I would suggest that if you are getting good rank, then please take this IIT because here mathematics department have a huge respect. Like after CS, people respect mathematics department। The good thing is like here मतलब you मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल को मैथ्स के कोर्स तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस CS के कोर्सेज मिलेंगे मैथ्स डिपार्टमेंट में। सो दिस इज वर्ड सो वी मतलब हमें दूसरे डिपार्टमेंट में कोर्स लेने नहीं होते हैं। हमने इलेक्टिव लिए थे तो हमारे डिपार्टमेंट के ही लिए थे हमने। इनफैक्ट डाटा एनालिटिक्स कोर्स वाज आल्सो देयर, आई टुक इट इन सेकंड सेमेस्टर एज ए इलेक्टिव, बिग डाटा एनालिसिस। हम्म। तो So you are in स्टैटिस्टिक्स you थोड़ा are in मतलब मेरा। you are in CS department. So you go for mathematics one department for that courses, right? Or not? You are in CS department. So you नहीं, go. दिस कोर्स इज इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। Okay. So it's not. या So in mathematics, you have which courses other than data processing, computer science and data processing? Which courses? दिस इज मतलब इस कोर्स में तो एमटेक ही है, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा प्रोसेसिंग में एमटेक है, बाकी एमएससी मतलब BSMS कोर्सेस आते हैं। Okay. मतलब वो तो जे एट बेसिस पे एडमिशन होते हैं। Mm-hmm. एंड एमएससी कोर्स आर देयर, एमएससी एडमिशन आर ऑन बेसिस ऑफ IIT जैम एग्जाम। सो दिस So कोर्सेस आर देयर। कुछ आइडिया कि इतने रैंक, जैसे 220 रैंक है ना, सो आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी कितने रैंक तक लेते हैं, लाइक IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, कुछ आपने भी ट्राई किया होगा, तो व्हाट रैंक एनीवन कैन गो फॉर दैट?
नेटवर्क बीच में कितने कट रैंक रहा था। तक वाले लोगों को, कितने रैंक तक वाले लोग इसके लिए जा सकते हैं? लाइक आप भी ट्राई करेंगे, आपने हाँ आईआईटी बैंगलोर ट्राई किया होगा, आईआईटी मद्रास, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है ना। तो कितने रैंक वाले लोग इसके लिए जा सकते हैं कुछ? हाँ, तो मतलब कि एमएससी मैथ्स वालों के लिए तो ट्रेनर ये है कि आईआईटी गुवाहाटी के लिए टॉप रैंक चाहिए, हम्म लाइक की टॉप 30 to 40 रैंक। एंड फॉर हम्म आईएससी बैंगलोर, गेट रैंक इज नॉट इनफ, वन शुड परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है आईएससी बैंगलोर में। सो हम्म आई डिडंट फील फॉर आईएससी बैंगलोर बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजंस। हम्म सो मतलब मैंने सिर्फ मतलब खड़गपुर, मद्रास एंड हम्म गुवाहाटी ये फील किया था। हम्म So in my second round, I wrote Madras and Khadarpur. So I was confused whether I should take Madras and Khadarpur. So I researched came in Madras. There are mathematics oriented subject. So I was like, if I'm switching my field, then I will switch it to entirely. So I took Khadarpur. So and the rank is like कि इन जनरल कैटेगरी यू गेट, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा रैंक लाना होगा फॉर जनरल कैटेगरी, लाइक कि यू नीड टू गेट अंडर 100 फॉर जनरल कैटेगरी। एंड आई वाज इन ओबीसी, सो इट वाज लाइक कि 220 में मेरा हो गया। फॉर ओबीसी 250 के अंदर हो जाएगा खड़गपुर में, एंड मद्रास के लिए अंडर 400 हो जाएगा, 400 के अंडर फॉर मद्रास। मतलब इफ मतलब वन वांट टू गेट एमटेक इन आईआईटीज, सो मतलब 500 के अंदर रैंक लाने लाना ही होगा। दिस इज समथिंग। Thank you for providing this data. That will be helpful for audience. And now you are enjoying this. What you have chosen, you what you have decided. You are enjoying this curriculum courses life. And how was your daily routine? Like हमें बहुत सारे कोर्स करने होते हैं, बहुत सारे बिजी शेड्यूल है, तो क्या शेड्यूल होता है कुछ आईटी केजीपी में एमटेक स्टूडेंट्स का? It's like in starting when I came here, then I was like, I will explore each and everything. So I took a swimming class. So in starting, I used to go for swimming in morning at हम्म 5:30 a.m. And after that, I used to have class from 8 o'clock. So the first thing is campus is too large. हम्म One how to be so One how to be in so speed for coping up with campus. So from 8 o'clock we had a class, and up to 2 o'clock the classes होती थी, and फिर classes के बाद we used to go in library. So my most of time used to spend in library itself only. So हम्म this was only मतलब, but after that I realized कि मतलब एमटेक वालों का ऐसा है कि मतलब स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। आई रियलाइज इन स्टार्टिंग आई participated in sports activities and in some whole council events also, as I'm also whole council member. So after 2 months I realized कि academics छूट जाएगा। Then I left some activities and I completely focused on my academics because हम्म one need to do so much efforts here for coping up with classmates, as people used to study like the entire nights, entire day. ओके So I just so my most of time I used to be in library only. ओके This is what सो the schedule. नाइस। लाइक आप जो स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो, कुछ अच्छा करते हो, दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन प्लेसमेंट, व्हाट आई हैव हर्ड। एंड टेल आल्सो अबाउट द व्हाट environment facilities campus life, you are in that institute where Google CEO also alumni of that institute. So tell about the environment facilities, the sport facilities, faculty, classroom, little details about it, and also tell about that कि प्लेसमेंट में हेल्पफुल होता है वो कुछ करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का। या मतलब उतना तो फिर मैंने रखा ही था कि इतना एक्स्ट्रा करिकुलम में, दैट हम्म कि थोड़ा बहुत मेरा मतलब सीवी में रिफ्लेक्ट हो, दैट आई वाज। बट मतलब इतना नहीं हो सकता कि लाइक कि आई कैन ड्यू मतलब फॉर एमटेक स्टूडेंट्स इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्यू 2 hours फॉर स्पोर्ट्स। वन कैन लाइक ये मतलब maximum one हम्म hour one can do, but for 2 hours it's not possible for mtech. btech students are like they used to do everything for first year, second year,
third year, and in the last year they used to focus only on academics. Actually, they get much time now, and we only get 2 years. Not all, Hmm. not also for complete 2 years. We only get 1 year, so we Yes. can't compare with those. मतलब बीटेक वाले like कि they used to do everything. So हाँ, sports facility है. There are superb sports facility. As campus is too large, cycling होती रहती है like कि साइकिलिंग Hmm. तो मतलब इनफ है, मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे वो अपने आप होगा. एंड या क्लासरूम आर ऑब्वियसली सुपर एज इट इज आईआईटी. एवरीथिंग इज सो गुड. हॉस्टल फैसिलिटी आर आल्सो सो गुड. मतलब इन माय हॉस्टल देयर इज एसी एंड इट्स सिंगल रूम. सो सिंगल रूम प्लस एसी, सो इट्स वेरी Hmm. गुड. Hmm. Okay, nice. And yeah, So, Google mhm. CEO, matlab, it feels proud that we are the student of the institute where Google CEO studied and Arvind Kejriwal studied. It feels proud sometimes, yeah. Really, When right. मतलब ये सब Mhm. कैंपस के बाहर जाने के बाद थोड़ा फील होता है. कैंपस के अंदर इट्स वेरी नॉर्मल. या मतलब कुछ दिन बाद लगेगा, या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हो, जैसे आपकी प्लानिंग प्लेसमेंट की है या फ्यूचर प्लानिंग, लाइक इस कोर्स करने की वजह कुछ और एम्बिशियस हो, एम हो, ऐसा कुछ आपका, लाइक कुछ अपना करना है, जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, डू यू थिंक लाइक दैट समथिंग डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? Yeah, in my मतलब we used to study in group, 3 to 4 people. So मतलब sometimes मतलब it's like कि हाँ people plan कि startup का, but firstly मतलब यहाँ पे जो आते हैं ना CSTP कोर्स के लिए, they target placement only. if पहले तो placement ही target है, उसके बाद one can have startup after having good amount of Nice. money. Okay, Yeah. so do you guys feel like competition with BTech student in context of placement, they get more preference in placement? Yeah, this is truth. मतलब, as we tell people spend much time in campus, so they have much idea about very super things. Mhm. So and also some companies prefer BTech over MTech, but not मतलब not all companies prefer. मतलब some companies also prefer कि uh, maturity, and also like some research area some companies also prefer, so they also take MTech. and दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे ना, like if 1 hour super coding and knowledge, then मतलब MTech people are preferred over BTech. Okay. मतलब Mhm. after having super amount of hard work, मतलब MTech की प्लेसमेंट्स होती है, ऐसा नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट्स है, लाइक इन कुछ कोर्सेज में, नॉट इन एवरी कोर्सेज. इन स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक CS कोर्सेज. नाउ आल्सो देयर इज AI कोर्स, MTech in AI, Mhm. and MTech in computer science and data processing. These courses students have a good placements in MTech. Okay. तो कोई स्पेसिफिक कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, लाइक स्पेसिफिक इतने सारे हर साल आ रही है, सो वही ज्यादातर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वही कंपनीज आएगी, सो उनका नाम लाइक कौन कौन सी आती है? मतलब बहुत बहुत सारी कंपनीज आती है. IIT खड़गपुर इज फेमस फॉर लाइक की प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा कंपनीज आई थिंक यही आती है, ओके। सबसे नाइस। ज्यादा. हम्म। एंड मतलब मैं मेरे सीनियर्स की जो प्लेसमेंट हुई है उन कंपनीज का नाम बता सकती हूँ, लाइक मेशो एंड बैंक ऑफ अमेरिका हम्म। एंड some Schneider Electric was there, and IBM. Yeah, in IBM यस। also 2 people were placed in from our senior batch, and Siemens is there, Bosch, HSBC. These are top companies. So थैंक go थैंक। for Google Microsoft companies pick BTech students, huh? ओके। But Google and Microsoft are usually for BTech, and like Samsung takes from MTech people. In our super senior, there was one placement in Samsung also. Amazon is there, like all Flipkart, they take MTech people. थैंक यू फॉर ये valuable information. So now tell about something related fellowship. Fellowship you got get in this courses, and how much this is helpful, Yeah, as and how much you we get. get stipend. Yeah, sir.
as we get stipend through MHRD हम्म fellowship, it's 12,400. It's हम्म really it's really relaxing कि मतलब हर मंथ वो टाइम पे आ जाता है। हम्म मतलब एज एमटेक में आते आते थोड़ी मतलब ऐसा हो जाता है ना कि पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना। एंड या मतलब आई वुड सजेस्ट कि कई अगर बच्चे मतलब फाइनेंशियल रीजन से अगर नहीं करना चाह रहे तो आई वुड सजेस्ट मतलब 12,400 इज इनफ अमाउंट टू इनफैक्ट मतलब फी भी पे कर सकते हो, वन कैन पे द फी ऑल्सो। ओके सो थैंक इट्स यू गुड। सो फाइनली कुछ आप शेयर करना चाहोगे लास्टली एंड थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द क्वेश्चंस रिप्लाई वेरी नाइसली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आपका मन में हो कुछ चीजें शेयर करना चाहो 2 मिनट ले सकते हो सो या थैंक यू सर, thank you, sir. So well, I would suggest कि if you are like MSc Mathematics and MSc Physics student, you see, for BTech there are options. They in my course there are also BTech students. As these courses are open for MTech, CSTP course is open for BTech Electronics and BTech Electrical. So there will be students of this branch also. So I would suggest to MTech, MSc Mathematics and MSc Physics people कि मतलब if you want to study further higher, so you should do some research on this field, and you can get admission in these IITs and you can have a better future. थोड़ा सा 2 साल एफर्ट लगाना है and you can have better future comparing to just having MSc course. You can have very better future. So this is something I would suggest. हाँ मतलब गेट में आपको लाना पड़ेगा रैंक, दिस इज सब यस नेसेसरी कंडीशन। जरूरी नहीं कि आप एमएससी मैथ्स करने के बाद पीएचडी के लिए जाएं पीएचडी तो मोस्ट लोग जाते हैं बट मैं मानता हूं कि दिस कोर्स इज आल्सो हेल्पफुल एंड अगर किसी का इंटरेस्ट हो पहले से बीटेक करने का मन हो नहीं जा पाए हो एमटेक के लिए जा सकते हो आईआईटी में और इज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी एज ए कैरियर मेरा मानना है तो थैंक यू प्रिया फॉर ऑल द conversations and very very all the best for your future endeavor do hard work and complete your dream whatever you have. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।